Okay. Question number 3C. Using the RH criteria, find out the value of k for the system to be stable. And the equation is g of s is equals to k upon s plus 1, s plus 3, s plus 5. Okay, so let us find out the range of k. Okay, so g of s is equals to k upon s plus 1, s plus 3, s plus 5. Okay, yeah, I think so. So determine the range of k. Okay. So first of all, convert this equation into the characteristic equation, which is 1 plus g of s into h of s is equals to 0. Put this value, so it is s in bracket s plus 1, s plus 3, s plus 5 plus k is equals to 0. Do the simple calculation. So it is s plus 1 here, s square 8s 15 plus k is equals to 0. Okay, uh, then after multiply with this s, so s cube 8s square plus 15s plus s square plus 8s square plus 50 plus k is equals to 0. Okay, so it is s is to 4 plus 8s square, so it is 16 uh, 16 and 17. Okay, 17 s cube plus 15s square plus 15s plus k is equals to 0. Okay, correct me if I am wrong. Okay, I think it is correct. 8s square. So now apply the RH criteria to find out the range of k. So it is s is to 4, s is to 3, s is to 2, s is to 1, and s is to 0. Okay, यहाँ पे क्या आएगा 1 15 k, this is 1 15 and k in next 17 and 15, so this is 17 and 15, here is nothing, so it's 0. Okay, now do the simple calculation. First 17 into 15. Okay, so 17 into 15 255 minus this 1 into 15 divided by 17. Okay, so divided by 17, answer आ गया 2 मीटर. 17 into 15 minus 15 divided by 17, so it is 14.1176. तो ये आएगा 14.1176, so it is 14.117. If you do this calculation, so 17k minus this and by 17, so it's k 0. Next column 14.117 into 15 into 15 minus 17k, so this 211.76 minus 17k divided by 14.117 0 0 and k. Our calculation is correct. Why? Because here it is k and this last term is also k. Now for which value of k the system should be stable? So now please look this equation. Okay, so here is 211.76 minus 17k should be greater than 0. That means 211.76 greater than 17k. Okay, that means divided by 17, that is 12.45. Okay, so for which value of k your system, okay, and for this one k greater than 0. Okay, so now we have to just define the range of k. So range of k is in between 0 to 12.45. ठीक है, ये आपका आंसर तभी करेक्ट होगा जब ये ऊपर का कैलकुलेशन सही है. ठीक है, अगर ये ऊपर के कैलकुलेशन में आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी
तो आपका ये पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो ये मेरा आंसर गलत है, अदरवाइज इट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, explain state variable and straight trajectory. Please refer your textbook. Next question is draw the polar plot. Okay, now it is a new for you. Okay, this is a polar plot considering a unity feedback system with open loop transfer function. Okay, fine. अब ये polar plot यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, देखो ये रहा मेरा polar plot. How can we calculate any numericals based on the polar plot? ठीक है, ये कौन सा न्यूमेरिकल है? जी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 अपॉन एस, एस प्लस 2, एस प्लस 5, ये पोलर प्लॉट का है। ओके, बट नो नीड टू डायरेक्टली स्टार्ट आउट मींस स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। ओके, let us consider first of all, or let us just discuss about the polar plot. How can we solve any example which is based on the polar plot? देखो ये बहुत इजी है। So polar plot is also a one kind of plot which is used to find out the stability of closed loop system while considering the open loop system transfer function. Okay, so for example हम डायरेक्टली ले लेते हैं। देखो actually polar means what? In a polar we have to calculate two things. First is magnitude and second is angle. Okay, it's just a magnitude and angle. ये दो चीज हम ये पोलर प्लॉट में फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल g of s into h of s is 1 upon s plus a। चलो फाइंड आउट पोलर प्लॉट, फाइंड पोलर प्लॉट, फाइंड पोलर प्लॉट। ओके, चलो ये ए भी नहीं है। चलो आई कंसिडर वेरी इजी एग्जांपल सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पोलर प्लॉट। अगर कोई भी एग्जांपल आपको पूछा जाएगा तो आपको आ जाएगा ये पोलर प्लॉट का एग्जांपल। ठीक है, g of s into h of s is equals to 1 upon s। तो क्या आपको फाइंड करना है? इतना याद रखो कि अगर पोलर प्लॉट का कोई भी न्यूमेरिकल जीटीयू में आता है तो दो ही चीज हमें ये कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड एंगल? नाउ पुट s is equals to j omega। ओके, so g of j omega into h of j omega is equals to 1 upon j omega। Now find out the magnitude. So magnitude of g of j omega into h of j omega is equals to 1 upon magnitude of j omega। तो उसका क्या होगा? magnitude 1 upon omega। Now how can we, okay, so this is first magnitude हमने calculation कर दिया। Second angle, how can we find out the angle of g of j omega into h of j omega? तो ऊपर देखो, ऊपर कौन सा टर्म है? 1, तो 1 का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? j ओमेगा, उसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इमेजनरी है। ठीक है, तो एंगल अगर डिवीजन में होता है तो उनका क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। हाँ, इतना याद रखो। तो एंगल मुझे कितना मिला? माइनस 90 डिग्री। एंगल इज माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो मुझे दो चीज मिल गई, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो नाउ फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को m से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/0, 1/0 इंफिनिटी, एंड एंगल मेरा कितना होगा? उतना ही होगा, माइनस 90 डिग्री। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ओमेगा एंगल रिमेन्स सेम, माइनस 90 डिग्री। फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इज 1/1, 1 एंगल माइनस 90 डिग्री। For omega is equals to 10, magnitude is 1/10, that means 0.1, 90 डिग्री। 5-6 वैल्यू ले लेते हैं ओमेगा की। ठीक है, लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कंपलसरी आना चाहिए उसमें। ओमेगा इज इक्वल टू 100, मैग्नीट्यूड 1/100, 0.01, एंगल माइनस 90 डिग्री, एंड लास्ट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी
magnitude 1 by infinity 0 angle 90 degree. Okay, now let us plot this polar plot. ओके तो अब देखो मैं यहाँ पे पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत इजी है ये, ठीक है। सो दिस इज द पोलर प्लॉट। चलो, पोलर प्लॉट मीन्स इसे मैग्नीट्यूड एंड एंगल प्लॉट, ठीक है। ओके अब देखो ये सभी एंगल कौन से, -90 डिग्री एंगल है। अब हमें तो मालूम है ये कौन सा एंगल है, 0, 90, 180, 270, 360, ऐसे भी बोल सकते हैं। और यू कैन कॉल इन दिस वे 0, -90, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। -180, -270, -360। तो -90 कहाँ पे आया, नीचे यहाँ पे, ये देखो ये है मेरा -90। तो ये सभी पॉइंट जो है वो एक ही एंगल पे है, कौन से, -90 पे। ओके फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, इन्फिनिटी, बहुत ही दूर है। हाँ ठीक है, देखो मैंने जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 0, मेरा मैग्नीट्यूड क्या है, इन्फिनिटी, बहुत ही दूर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो बहुत ही दूर होगा। ओके ओमेगा इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इज 1, तो यहाँ पे है ओमेगा इज इक्वल टू 1। ओमेगा इज इक्वल टू 10, मैग्नीट्यूड इज 0.1, तो मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, और ओमेगा इज इक्वल टू 10। ओमेगा इज इक्वल टू 100, 0.01 यहाँ पे होगा। एंड ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, द पोलर प्लॉट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड एंडिंग एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, पोलर प्लॉट ऑलवेज कहाँ से शुरू होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी में वो खत्म होगा। तो ये रेड कलर की मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो क्या है, मेरा पोलर प्लॉट, बात खत्म। ये रेड कलर की जो मैंने लाइन ड्रॉ की वो क्या था, मेरा पोलर प्लॉट, जो ओमेगा इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है और ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी में खत्म हो गया। चलो लेट्स सॉल्व one more numerical so you can easily understand about this concept, polar plot, ठीक है। Next numerical is g of s into h of s is equals to 1 upon s plus alpha। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बहुत ही इजी है, पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा। सो इफ वी पुट s इज इक्वल टू j ओमेगा, ठीक है, सो दिस 1 अपॉन j ओमेगा प्लस अल्फा। चलो अब क्या फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और एंगल क्या होगा, एंगल थीटा, ये 1 है ऊपर न्यूमरेटर में, तो उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, डिवाइडेड बाई नीचे देखो जे ओमेगा प्लस अल्फा, रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म दोनों है, तो क्या होगा, tan इनवर्स ओमेगा बाय अल्फा। ठीक है, अगर एंगल मेरे डिफरेंशिएटर में मीन्स ऐसे डिवीजन में है तो उसका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एंगल इज माइनस, उसका सब्ट्रैक्शन होगा ओमेगा बाय अल्फा। इज इट क्लियर, ठीक है, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, है ना। चलो नाउ वी आर टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो लेट अस फाइंड फॉर ओमेगा इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। ओके तो फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0, मेरा मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे देखो 1 अपॉन अल्फा, वॉट एवर द एंगल 0 डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इज, चलो अल्फा की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलेगा। टेक अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके टेक अल्फा इज इक्वल टू 1। Okay, so this actually it is 1 upon s plus 1. So this 1 upon, this magnitude is 1 upon root omega square plus 1 and angle is tan inverse omega by 1. ठीक है, so here if we put alpha is 1, so this 1, okay, omega is equals to 1, alpha is 1, so this 1 upon root 2, whatever the angle, alpha is equals to 1, okay, so and omega is 1, so tan inverse 1, tan inverse 1 क्या होगा 45, so this minus 45 degree, ओमेगा इज इक्वल टू 10, क्या होगा मैग्नीट्यूड
put omega is equals to 10, so it is root 100 plus 1, so root 101. ओके, रूट 101, तो क्या होगा अंडर रूट 101, 101 और उसका अंडर रूट। ओके, सो कैलकुलेटर है तो करो भाई, ठीक है। रूट सॉरी 101, ओके, और उसका इनवर्स रूट 101 का उसका इनवर्स, अरे नहीं बता रहे, रूट 101 10.04, okay, and 10, okay, so 0.09, it is 0.09. What about the angle? Tan inverse 10, okay, so angle क्या होगा, tan inverse 10, okay, just open this calculator so you can easily find out. Tan inverse 10, 84.29, okay, minus 84.29, okay. And if you last choose omega is equals to infinity, so magnitude is 1 upon under root of 100 plus infinity square, so it is 1 upon infinity, so 0, and theta is equals to tan inverse infinity minus 90 degree. That means all the points are present between 0 to 90 degree. Okay, so if I do, if we draw polar plot, we draw the polar plot, okay, and different points, okay. So this is my angle, 0 degree, minus 90 degree, minus 180 degree, minus 270 degree, minus 360 degree. ओके, तो कहाँ पे आएंगे, 0 और माइनस 45, मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, सभी पॉइंट वहां पे आएंगे। ओके, फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड इज इनफिनिटी, ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड इज 1 एट थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे होगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ये मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक है ना, ये डिस्टेंस और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। सेकंड ओमेगा इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इज 1/√2, लेकिन कहाँ पे माइनस 45 डिग्री, सो सम हाउ माइनस 45 डिग्री का पॉइंट यहाँ पे होगा, ये है माइनस 45, ठीक है, एंड दिस इज ओमेगा इज इक्वल टू 1, देन ओमेगा इज इक्वल टू 10 एंगल माइनस 84, तो सम हाउ पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, and last omega is equals to infinity, magnitude is 0, okay. That means if I to join all this point, तो ये हुआ मेरा पोलर प्लेट, ठीक है। उसको मैं थोड़ा अगर अच्छी तरह से मैं ड्रॉ करूंगा ना तो आपको दिखाई देगा, तो ऐसे होता है मेरा पोलर प्लेट, देख लो, और स्टार्ट फ्रॉम omega is equals to 0 and it's ending at omega is equals to infinity, and this is my polar plot. Here is my polar plot. आया समझ में, ठीक है। Okay, so now let us solve this numerical. 10 s plus 2 s plus 5. Okay, so draw the polar plot for g of s into h of s is equals to 10 divided by, देखो यहाँ पे सिर्फ g of s लिखा हुआ है, h of s नहीं है, h of s means feedback system, and feedback system is unity means 1, so h of s की वैल्यू क्या है 1, okay, s plus 2 s plus 5, s plus 2 s plus 5 into 1, तो ये मिलेगा into 1 करेंगे तो ठीक है। now put s is equals to j omega, so g of j omega into h of j omega is 10 divided by j omega plus 2 j omega plus 5. Now find out the first magnitude, तो magnitude क्या होगा 10 upon omega under root of omega square plus 4 under root of omega square plus 25. and what about the angle, एंगल कितना होगा, देखो मैं डायरेक्टली से पूछ लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 का एंगल तो 0 डिग्री होगा भाई, ओके,
उसके नीचे है एस मीन्स ये जी ओमेगा का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा भाई। उसके बाद जी ओमेगा प्लस टू उसका होगा टेन इनवर्स ओमेगा बाई टू। देन नेक्स्ट टेन इनवर्स omega by 5. Okay, so if you find out the angle, so angle is uh, minus 90 degree minus tan inverse omega by 2 minus tan inverse omega by 5. चलो अब क्या करना है, put the different value of omega and find out the magnitude and angle. Okay, so let us first take omega is equals to, okay, now take omega is equals to 0. So for omega is equals to 0, what should be the magnitude? यहाँ पे देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0, सो 10 बाय 0 एंड दिस वन, ओके, अगर डिनोमिनेटर में एक बार 0 आ गया दैट मींस आंसर इज इंफिनिटी। तो ये क्या होगा आपका आंसर इंफिनिटी एंड पुट हियर ओमेगा इज इक्वल टू 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 0 एंड एंगल इज 90 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू -90। नेक्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू 1, सो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, जो भी आ रहा है ठीक है, वो आपका रोल है, अब कैसे फाइंड करना है, ठीक है। Do the calculator and find out, take the calculator and find out all the value of means find out the value of this magnitude for omega is equals to 1, जो भी आंसर आता है। what about the angle, यहाँ पे रखो omega is equals to 1, so it is 1 by 2, omega is equals to 1, so it is 1 by 5। ठीक है, जो भी आपको एंगल मिलेगा वो आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। देन ओमेगा इज इक्वल टू 10, जो भी मैग्नीट्यूड आता है वो लिखो, जो भी एंगल आता है वो लिखो। ओमेगा इज इक्वल टू 100, जो भी मैग्नीट्यूड आपको मिलता है वो लिखो। देखो मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, आपको खुद कैलकुलेशन अब करना है, वही लिखो। और लास्ट में क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी 0, मैग्नीट्यूड इज 0। एंड व्हाट अबाउट द एंगल, if you put infinity tan inverse infinity 90 degree, tan inverse infinity 90 degree, so 90 90 90 270। ठीक है, चलो now let's draw the polar plot, it's very easy ना, ठीक है, polar plot का एग्जांपल बहुत इजी होता है। ओके चलो फर्स्ट क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी। ओके अब ये देखो यहाँ पे है 0 -90 -180 -270 एंड -360 लिख दिया नेट 0। ओके ओमेगा इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड इज इन्फिनिटी एट थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री, मींस ये लाइन पे ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे बहुत ही नीचे होगा ये मेरा ओमेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा मुझे इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक पॉइंट बहुत ही ऐसे नीचे हुआ, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 1, कुछ मैग्नीट्यूड मिलेगा एट सम एंगल, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मिला, ठीक है, वो आप खुद कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई ये एंगल कितना होगा। अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो एंगल है ना, अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता दूं तो वो होगा माइनस फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट समथिंग होगा या 120 पॉइंट समथिंग होगा, बट इट इज इन बिटवीन -180 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो एक चीज आपको पता लग जाएगी कि यहाँ पे स्टार्टिंग ओमेगा इज इक्वल टू 0 का एंगल कितना है -90 डिग्री, एंड एंडिंग का एंगल कहाँ पे है -270 डिग्री। मीन्स हमारा जो पोलर प्लॉट है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा मालूम है, वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ पे होगा हमारा पोलर प्लॉट। ठीक है, ओके। देन आफ्टर ओमेगा इज इक्वल टू 10, आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 100 फॉर एग्जांपल, आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, एंड लास्ट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड क्या है आपका 0, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड 0, तो यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो इफ यू जॉइन ऑल दोस पॉइंट, सो योर पोलर प्लॉट, ठीक है, तो ये है आपका पोलर प्लॉट, start from omega is equals to 0 and ending at omega is equals to infinity. So it is called as polar plot. It cross -180 degree axis also. ठीक है ना, ओके, तो ये है पोलर प्लॉट। हाँ, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट लोकस। ओके, सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।